after a short break. Okay, you all had a short Diwali vacation. We are back. Before we moved to vacation, we had planned as soon as we return on the very first day, I'll start the new chapter, and that is statistics, chapter number 14. You were told to watch few videos, all right, which were uploaded earlier. Okay, 9th standard statistics, very important, because those who are going to answer the basic paper, for them 14 marks from this chapter. Mark load is 14, all right, and those who are going to answer standard paper, for them also we have 8 marks question from this chapter. Okay, so it's important, easy, and you can score. The work is monotonous, मतलब एक ही प्रकार का काम है, उसमें कुछ नया मेथड नहीं आती है. There is only one stereotype method, all right, and you have to follow. हर सम में वही चीज करना है. So मतलब after solving 2 or 3 sums, you will remember the formula as well as the whole procedure. All right. Okay. Today, of course, in 9th standard, you all studied to find the 3 measures of central tendency of ungrouped data: mean, median, and mode. In 10th standard, we are going to do the same. We are going to see some methods to find mean, median, and mode, and we'll find them as well. Okay, but the data would be group data, classified data, frequency distribution table would be given to you. Okay, in today's session we'll see how we can find mean of group data. I hope you all have seen the video where we found the mean of ungrouped data. It's very easy. Okay, for better understanding, we'll have a comparative study of methods of finding mean of ungrouped data as well as group data, so that you have a rough idea of how that formula was developed. Okay, so I'll take one example of ungrouped data and find its mean. Actually, I have kept it ready, total bhi karke rakha hai, so that we don't waste time. Okay, so here are few observations of data, that is marks obtained by students out of 10 in a test. 25 students are there. Okay, so let's see. I'll write here question: marks obtained by 25 students in a test of 10 marks are as under. All right. Well, when we have to find the median, it is compulsory that we write those observations in ascending order. All right. For mean, it's not required. Okay. However, the observations which I am giving you are in ascending order for some reason. Okay. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, right? Then 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, and 9. These are the marks of 25 students who have answered a test of 10 marks. These are the marks scored out of 10. All right. Just confirmation के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 हुआ. What I missed out? 3, 5, 10. 3s are 3, 4s are 4, 5s are 6 and 7. Okay, एक और 5 है यहाँ, और 6 are
4, ठीक है, 7s are 2, 8s are 2 and 9s are 3. So ये टैली हो गया 25 ऑब्जर्वेशंस. ओके, चलिए फाइंड द मीन ऑफ दिस, बोलो, डेटा. फाइंड mean marks obtained by the students. Find the mean marks obtained. All right. Well, straight away, what is the formula to find mean? अब बोलिए, x bar is equal to sum of observations, जिसका सिंबल लिखते हैं सिग्मा xi upon number of observations. Excuse me. Right? So I've already made the total sigma xi. 3 plus 3 plus 3 plus dot 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 plus 9 plus 9. उसका टोटल है 141. All right. Number of observations obviously 25. Now the formula to find mean, x bar is equal to sigma xi upon n. Now that is 141 upon 25. 25 can be easily converted into vulgar fraction 100. बोलो 25 into what is 100? 4. So I multiply and divide by 4. 4 ones are 4, 4 fours are 16 and 5 divide by 100 and that gives me 5.64. X bar is the symbol of mean and the mean marks obtained by the students is 5.64 and that is out of 10. That is good. So what is the mean that you got here? X bar is equal to 5.64. Now that is ungrouped data and this is the formula to find the mean of ungrouped data. Now first of all we'll convert this ungrouped data into grouped data. Okay, so here is the screenshot. Now tally marks हमें लिखना पड़ेगा या मैंने ascending order इसलिए किया ताकि हम डायरेक्ट गिन सके. All right. The minimum value is 3. Maximum value is 9. So range of the data is 9 minus 3 and that is 6. Oh, we have to accommodate only 6 or 7 values. एक ऐड कर देना उसमें. So around 6 to 7 values we have to accommodate. So we can have 6 to 7 class. So in each class we will place only one value. First class में मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और लास्ट क्लास में मैक्सिमम. ऑल राइट. सो आई एम प्रिपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लास, ओके, और फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट, इसलिए तो असेंडिंग ऑर्डर किया मैंने. समझ में आ गई बात? चलिए, तो क्लास स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3 एंड इन ईच क्लास आई एम गोइंग टू प्लेस ओनली वन वैल्यू. 3 के बाद अब 9 तक लिखते जाओ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. बीच की सारी वैल्यूज आ जाएगी ऑटोमेटिकली. कोई ना हो तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, चलिए. 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स. 4 कितनी बार है? 4. 5 कितनी बार है? 7 टाइम्स. श्योर ना? 6 कितनी बार है? 4. 7 कितनी बार? 2. 8, 2, 9, 3. ओके, ये फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल है Fi and if you make the total you have symbol sigma. Sigma Fi, sum of observations 5, 7, 11, 18, 22 and 25. It has to be. Do you understand? Acha. Now this is having only one value. This is having only one value. So उसकी mid value वही रहेगी. मिड वैल्यू या उसको क्या बोलते थे आप लोग? क्लास मार्क. क्लास मार्क, लास्ट ईयर यूज्ड टू कॉल इट क्लास मार्क या मिड वैल्यू. भाई एक ही वैल्यू है तो वही मिड वैल्यू है या क्लास मार्क है, जिसको सिंबॉलिकली कहा जाता है xi. सिंबॉलिकली कहा जाता है xi. आई हैव टू मेक वन मोर कॉलम. एक्चुअली द फॉर्मूला टू फाइंड मीन, ओके, इज sigma fi xi upon sigma fi. This sigma fi is nothing but n. Sigma fi is nothing but n. ये जो frequency है sigma fi, that is sum of observations. So that is ungrouped data में हम symbol में n लेते हैं और group data में symbol क्या लेते हैं? sigma fi. Sigma fi. All right. Check.
और नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन. कैसे ये फॉर्मूला डेवलप हुई उसको समझना है. ऑलराइट, नाउ सी नेक्स्ट कॉलम आई एम गोइंग टू मेक सिग्मा fi. ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला और उसका टोटल करूंगा, देन आई गेट सिग्मा fi. चल रहा है. 3 3s are 9. ये 3 observations whose each value is 3. उसका टोटल 3 plus 3 plus 3 9. यही तो 9 है टोटल. 4 plus 4 plus 4 plus 4 16. 4 4s are 16. 5 plus 5 plus 5 6 times. So वही है. 5 7s are 7 times है ना. 5 7s are 35. वो टोटल 35 है. 6 4 times, वो टोटल 24. 7 2s are 7 plus 7 14, वो टोटल में गया. फिर 8 2s are 16 और 9 3s are. तो ये तो सारे 25 ऑब्जर्वेशंस का टोटल ही हुआ. सिग्मा fi xi is nothing but the sum of observations. कितना टोटल आया था? 141 आया था ना. सिग्मा xi 141. ये सिग्मा fi xi भी 141 ही आएगा. Okay, 15, 20, 30, 37, 41, 4, 5, 7, 9, 10, and 13. 15, 20, 24, 34, and 41, 4, 5, 8, 10, and 14. There you are. Got it? So sigma xi and sigma fi xi is one and the same. Sum of observations ही है. लेकिन देखना, this is exact value. Sigma xi is exactly equal to sigma fi xi when the class length is single. When class length is only 1. You understand? Class length अलग होगी तो थोड़ा वेरिएशन आएगा. बट मैंने पहले ही बताया है आपको, आपने वीडियो में भी देखा होगा. स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल डिफरेंसेस, एरर नहीं, वो स्मॉल डिफरेंसेस कहेंगे हम लोग. वी वोंट कॉल इट एरर, लेकिन स्मॉल डिफरेंसेस आर एंटरटेनिंग, दे आर इग्नोर्ड. So यहां तो सेम आएगा बिकॉज क्लास लेंथ इज सेम. ओके, नाउ अभी इसमें कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बदली. x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Now what is sigma fi xi? 141. What is sigma fi? The same thing, multiply and divide by 4 कर लीजिए. So that will be 564 upon 100. So that is 5.64. All right children. मैंने वो टैली मार्क नहीं किया. 1 1 1 ऐसा 1 1 1 करते थे ना, है ना, वो नहीं किया मैंने यहाँ, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए मैंने लिखा. You understand? But this is your frequency distribution table. So it is a classified data, grouped data, and this is how we find mean of group data. 3 मेथड है चल रहा. This first method it's called direct method. इसको क्या कहते हैं? Direct method. Second method is called assumed mean method. Assumed mean method. All right. And third is called step deviation method. Step deviation method. So there are 3 methods to find mean of group data, classified data, frequency distribution table. You understand? सर ये मेथड अच्छी है, इसमें क्या दिक्कत? कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी. They must have faced some difficulty to find mean by direct method. So mathematician thought there should be some other method which is easier than that, and they developed assumed mean method. We are going to see that in the next example. क्या क्लास लेंथ 1 है तो वो तो सेम ही आता है. सिग्मा fi xi और सिग्मा xi सेम आता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब क्लास लेंथ इज मोर देन 1 तो उसमें डिफरेंस आएगा. अब एज्यूमिंग मेथड भी थोड़ी टफ लगी, तो उससे भी आसान कौन सी मेथड डेवलप कर दी? स्टेप डेविएशन. एक्चुअली बोथ आर सिमिलर, इसमें से ही ये नई मेथड आई. यू अंडरस्टैंड? ओके. सो इफ यू आर आस्क्ड to find the mean of group data and you are not asked or not specified by which method you are supposed to find, the best method to find the mean is step deviation. That would be very easy. You can do the calculations orally. Here
In certain classified data, you will need calculator for the simplification one. और वो you are not allowed to use calculator. So आपको बड़े-बड़े multiplications फिर बड़े-बड़े additions करना पड़ेगा. ये multiply करते हैं ना ये बड़े-बड़े numbers होंगे. चलिए ये value ही समझ लो. ये 23 थी और 31 times आया था. ये 44 था और 49 times आया था. ये 52 था और 107 times आया था. ये 16 था, ये 41 टाइम आया, ये 171 था और 122 टाइम्स आया, ये 180 है और 29 टाइम्स आया, ये 95 है और 331 टाइम्स आया. अब FI to XI करते रहो. It becomes difficult. Do you understand? समझ में आया क्या? So then mathematicians thought कि ये तो नहीं चलेगा भाई, ये तो it's consuming lot of energy. And even after consuming so much energy, that consistency of getting it correct is not there. Error तो आती रहती है. अब इतने सारे बच्चे हैं, इसको बोल दो ये मल्टीप्लाई करो, ये टोटल करो, there is every chance मुझे 10 अलग आंसर मिल जाएंगे, 10 different answers कम से कम मिल जाएंगे. You understand? Because it is boring, it is yes tedious job, right? So उसके लिए आपकी समझ में आ रहा है ना? So here हमने ये डेटा का तो देख लिया ना. जरा पॉज करो. ऑलराइट, 1 minute. Okay. We'll see the next example where class length is not single. जब class length single हो, this is the way you can find the mean of group data. Formula में slight change. Sigma xi की जगह पे sigma fi xi, which is actually exactly equal to sigma xi. और in place of n, we write sigma fi. Okay. So here रहा screenshot and let's move to the next one. Okay children, here is the second one that I was talking about. Once again, it's a ungrouped data. Marks obtained by 30 students. This time number of observations would be 30. In a test of 50 marks. So these marks are out of 50. R is under. So here are your 30 observations. Marks scored by those 30 students. Find mean marks obtained. What type of data is this? Grouped या ungrouped? Classified या unclassified? Unclassified. Ungrouped data. So what is the formula? First आप decide करिए formula कौन सी है? Sigma xi upon n. N you already know, it's 30. So let me write that. N is equal to 30. N is equal to 30. Sigma xi मैंने रेडी करके रखा है so that it doesn't waste, we don't waste time. It is 726. What is that? 726. Is that clear? Chaliye. So now the formula, if you remember, the work is done. Sigma xi upon n. So 726 upon 30. I said work is done. It's not yet done. You can make mistake here also in the calculation. So be careful. 3 10s are 3 से divisible है. 2s are 4s are 2s are. So that gives me 24.2. That is equal to x bar. So what is the mean here? X bar is equal to 24.2 marks. That is the mean of this ungrouped data. Now what shall we do? Let's convert this ungrouped data into and then find the mean. डेटा तो वही है, सिर्फ एक ग्रुप है और दूसरा अनग्रुप रहने वाला है. You understand? Okay. Now, what is the minimum value? Of course, you can easily find out because the observations are in ascending order. Bolo? 4. And maximum value? 48. So range of the data will be 48 minus 2. 4. And that is 44. तो एक 44 या 45 होगा. So एक वैल्यू डालेंगे तो 45 क्लासेस बन जाएंगे. हम एक क्लास में 5 वैल्यूज डालते हैं. Let's see. Okay, 5 या 10? 5. I'll start from 1 या 0 से शुरू करूंगा. क्लास 5 लेना है ना. Alright. और ये फ्रीक्वेंसी Fi. क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 to
22, 25 to 32, 35 to 42, और 45 to 50. You know that 5 is not included here. It's included in the lower class. 10 is not included here. ये continuous frequency distribution बना रहा है. चलिए, ये 2 ही आएगा, है ना? डायरेक्ट लिख रहा हूं. 5 to 10, यहां से यहां तक आएंगे. कितने वैल्यूज है? 5. फिर 10 to 15, ये 4 वैल्यूज आएंगी. समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, ताकि हम ये टेलीमार्क्स बिना टेलीमार्क्स लिखे लिख सकते. 15 to 20, 20 is not included, so सिर्फ 2. 20 to 25, 3 observations, right? 30 to 35, sorry, 20 to 25 था ना ये? 20 to 25. Now 25 to 30, सिर्फ one observation है. 30 to 35, एक यहाँ, 3 यहाँ, 4, very good. चलिए, 35 to 40, सिर्फ 2 observations है. 40 to 45, 45 is not included. 5. And 45 to 50. Of course, this is going to be sigma fi, also called number of observations. 7, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 28, and 30. It has to be 30 if we don't miss out. Okay? मिल गया? So now you have group data. यही data यहाँ है. This is ungrouped and this is grouped. दोनों में information is one and the same. Okay? Now we shall find the mean of this group data. मैंने कहा डायरेक्ट मेथड. कौन सी मेथड है? फर्स्ट हम इसी को देखते हैं, डायरेक्ट मेथड को. ऑलराइट, वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. वो नहीं है सिग्मा fi, तो दैट वी ऑलरेडी गॉट. फॉर्मूला में जो चाहिए उसमें से एक चीज सिग्मा fi इज ऑलरेडी obtained. इज दैट क्लियर? नाउ सिग्मा fi xi, मेरे पास fi तो है लेकिन xi नहीं है. xi यहां एक ही क्लास लेंथ नहीं है. In each class there are 5 values. In each class there are 5. पहले क्लास में आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है. उसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है. So in each class there are 5 values. That means the class length is 5. It's not single, it's not 1. Okay? तो इसको हम मीड वैल्यू लेंगे. इसकी वैल्यू क्या लेंगे? भाई एवरेज. इसका एवरेज लेंगे, सेंट्रल वैल्यू. तो यहां मीड वैल्यू लिखिए या सेंट्रल वैल्यू लिखिए या क्लास मार्क लिखिए, जो भी लिखना है लिखो. क्लास मार्क. यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसका सिंबल आएगा xi. 0 plus 5 डिवाइड बाई 2, 5 plus 10, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5. ये चिल्ड्रन 5 बढ़ेगा बिकॉज द क्लास लेंथ इज 5 कांस्टेंट. 5 ऐड कर दो 12.5, 5 ऐड कर दो 17.5, 5 ऐड कर दो 22.5. बोलो 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 and 47.5. Right? These are xi. So you have fi column, you have xi column. Now multiply them. So I'll have new column fi into xi. I need that columm. fi into xi column की जरूरत है. और नीचे टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा fi xi. कोई एक वैल्यू है. कुछ बच्चे ऐसे समझते सिग्मा fi एक और xi दो. वो मल्टीप्लिकेशन वाला, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है. दिस इज जस्ट वन टर्म सिग्मा fi xi. और वो यहां नीचे मिलेगा, है ना? सिग्मा fi xi का टोटल. बोलिए 2.52 5, 7.55 35 and 2.5 37.5. ये 0.0 लिख ही देते. 12.54 48 and 2 40. राइट? 17.52 35, है ना? 22.53 67.5.
है कि नहीं? 27.5 1 जा 27.5, 32.5 into 4 FI into XI, हाँ बोलो 64 और 2 66.0, 37.5 2 जा 75.0, 42.25 za. So it will be how much? 210. 212.5. 212.5. And the last one, उसका double 95. 95.0. 5, 20. 2 is carried over. 7, 14, 19, 26, 26, 33, 39, 49, 51 और 5. बोलिए. Sir, 32.5 to 4. 4, 1 to 0.0. yes. 32 will be 128 and 130 na? 128 plus 2 130. It will be 130. Okay, वो error है. इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. अभी this is 7, 14, 12.5, 48 और 2 50. 48 और 2 50. 12 होगा 48 and 2 50 होगा. Alright, चलिए. 22, 7, 14, 19, 26, 33, 38, 40, 45. 4 is carried over now. 7, 12, 15, 21, 23, 33, 43. 4, 5 और 2 7. अपना वो टोटल कितना था? किसी को याद है? 726. सिग्मा एक्साई था 726 और ये सिग्मा एफआई एक्साई 735. 9 जितना ज्यादा है ना? थोड़ा एक्सेस है, but that is okay. This sigma fi xi is as good as sigma xi. वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है. लेकिन सर ये तो अलग है. अलग ही आएगा. क्यों अलग आ रहा है? देखो यहां ऑब्जर्वेशंस 0, 1, 2, 3, 4 है. हमने एवरेज टोटल ले लिया 2.5. 2.52 जा उसका टोटल कितना आया? और टोटल है, एग्जैक्ट टोटल क्या है? 8. डिफरेंस आया कि नहीं? जो एग्जैक्ट टोटल है, परफेक्ट टोटल है, ट्रू टोटल 8 है और यहां 5 है. तो ये तो कितना डिफरेंस आया? -3 का, क्योंकि ज्यादा है. सॉरी 5 लिया ना, हाँ -3 करना पड़ेगा ना उसमें से. इसमें से ट्रू टोटल, ये टोटल में +3 करना पड़ेगा. जो 5 है उसमें +3 करेंगे तो 8 आएगा. लेकिन 5 है ना, सो +3 उसमें ऐड करना पड़ेगा. चलिए अब इसका टोटल 18, 26, 32 और 37, वो 37 है और ये 37.5 है. ये 37 है. सो यहां +0.5 करना है उसमें. ये बड़ा माइनस. यस ऑलराइट, क्योंकि ये कम आया. ओके चलिए. नाउ इसका टोटल, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोग. 36 और 49, ये ट्रू टोटल 49 है. राइट, कम आया ना. सो -1. इसमें से -1 करेंगे तो ट्रू टोटल आएगा. 50 में से 1 निकालो, इसमें से 0.5 निकालो, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा. ओके चलिए. नेक्स्ट 37. यहाँ 37 ट्रू टोटल, सही टोटल 37. यस, यहाँ +2 करना पड़ेगा. फिर इसका टोटल 66. ये भी माइनस करना पड़ेगा, -1.5. ऑलराइट, देखा. फिर इसका 27, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा 0.5, है ना. फिर नेक्स्ट टोटल -0.5. एक मिनट, ये उसमें से माइनस करेंगे तब आएगा. बराबर है. चलिए 92, 96 और 126.
126, 4 कम करना पड़ेगा, -4, -4, ऑलराइट। इसका है 75 और ये भी 75, इसमें ऐड भी नहीं करना है प्लस और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, एग्जैक्ट टोटल आ गया, राइट। और इसका टोटल 167, 168, बाप रे, यहाँ बड़ा डिफरेंस आ गया है ना, 208, उसमें ऐड करना पड़ेगा 4.5 ऐड करना पड़ेगा, राइट। और ये 95, इसमें नहीं है, अच्छा ये जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 4.5 तो द रियल टोटल मिलेगा। और ये 95 है और ये 93 है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, -2। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब ये ट्रू टोटल है, ये ट्रू टोटल है, कौन सा? 726। क्यों इतना डिफरेंस आया? इसकी वजह से कभी ऐड भी होता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी होता है। सो अल्टीमेटली जो डिफरेंस आता है वो देख लीजिए, +3 +2 +5 +5 और ये -3 -3.5 -8 -10, सो -5 कुछ डिफरेंस अलग सा आया ना, 5 या -10, सो -5 का डिफरेंस, मतलब -5 करेंगे तो -730 होगा, कुछ एरर होगा। सी बट दिस इज द वे आई डिड गेट एग्जैक्टली यहाँ सब। ओके, ये टोटल फिर से देख लेते हैं, 5 10 15 22 is carried over 7 14 19 26 33 38 40 45 4 45 with 4 7 12 15 21 23 26 26 36 and 43 4 5 और 735 सही है। अब ये मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा या फिर ये टोटल 726 है कि वो भी चेक करना पड़ेगा। एनीवेज आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट होल प्रोसीजर अगेन, बट ये जो डिफरेंस है ना वो यहां आ जाएगा, यहां नहीं आया है लेकिन वो आ जाएगा। सो ये अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो छोटा सा है एंड दैट कैन बी इग्नोर। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द एग्जैक्ट टोटल, दिस इज अप्रोक्सीमेट टोटल ऑफ दिस टू ऑब्जर्वेशन। ये 37, ये 5 ऑब्जर्वेशंस का एग्जैक्ट टोटल है और 37.5 उसका अप्रोक्सीमेट टोटल है। ये 49, ये 4 ऑब्जर्वेशंस का एग्जैक्ट टोटल है और 50 उसका अप्रोक्सीमेट टोटल है। तो ये पूरे 30 ऑब्जर्वेशंस का अप्रोक्सीमेट टोटल है और ये पूरे 30 ऑब्जर्वेशंस का एग्जैक्ट टोटल है। दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो माइनर होगा एंड दैट इज एंटरटेन्ड, इट इज इग्नोर्ड, इट इज निग्लेक्टेड। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? सो यहां हमारी फॉर्मूला के हिसाब से माइनर डिफरेंस आएगा मीन में, है ना? ऑलराइट, चलिए हमने ये काम कर दिया ना। मीन इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। What is sigma FIXI? 735. And this 30. 3 10s are, 3 2s are, 4s are, and 3s are. So that is 24.3 marks. जो actually 24.2 है. This is exact mean. This is approximate mean. And the difference between exact and approximate mean is minor, which is entertained 0.1. You understand? So this is how we find the mean of group data by direct method. By direct method. अब समझ लो, ये क्लासेस कुछ अलग हो और यहाँ 12 हो, यहाँ 51 हो, यहाँ 42 हो, यहाँ 121 हो, 33 हो, 12 हो, 49 हो, 22 हो, 53 हो, 25 हो, बोले, और ये भी बड़ा वाला हो 12 17, ओके, 112 117, फिर ये तो मतलब बड़ा। तो सी FI into XI वेरी डिफिकल्ट है ना, तो उसके लिए उन्होंने एक और रास्ता चुना और दूसरी मेथड ढूंढ ली। They found the second method.
उसको कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या कहते हैं? एज्यूम मीन मेथड। ऑलराइट, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए, where a is assume mean। स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। आई थिंक स्मॉल ए आपकी बुक में लिखा है। ए प्लस सिग्मा एफ आई हाँ, ये यू आई अपॉन सिग्मा एफ स्मॉल ओके, स्मॉल स्मॉल ए लिख देते हैं। चलिए स्मॉल ए, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। मुझे हैबिट है कैपिटल ए लिखने की। एनी दिस इज द फॉर्मूला। कौन सी? एज्यूम मीन। ये ए क्या है? व्हाट इज ए? तो दैट इज एज्यूम्ड मीन। हम मीन को एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम मीन इतना होगा, हम गैस करते हैं। एज्यूम मीन, ऑलराइट। और ये जो ui है ना, दैट इज xi माइनस ए। xi माइनस ए, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन, ऑलराइट। और सिग्मा एफ को आपको पता है। ओके, तो यहां हम एक काम करते हैं, यही क्लासेस वाला जो टेबल है, ओके, उसका हम मीन ढूंढते हैं, बट नॉट सिग्मा एफ आई एक्स आई। दूसरी मेथड, कौन सी मेथड? क्योंकि ये एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन हो जाने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, टीडियस होगा और एरर का पूरा चांस होगा। तो यहां मैं एक नई कॉलम बना देता हूं जो है ui और फॉर्मूला लिखो xi माइनस ए। xi तो ये है, ये एक्साइज है, ये xi में से आपको a माइनस करना है। लेकिन a क्या है? वेर इज ए? वेर इज ए? कोई भी क्लास हो, उसका एक वैल्यू चूज कर लो, क्लास मार्क। ये जो क्लास है, ये जो कॉलम है, वो क्लास मार्क है, मिड वैल्यू है। उसमें से किसी एक को पसंद कर लो, किसी एक को, ऑलराइट, और उसको ए बोलो। एज्यूम कर रहे हैं। आपको एज्यूम कहां से करना है? एनी वन वैल्यू ऑफ क्लास में। हम एक ट्रिक करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5, लेकिन दो जगह पे है। तो मैं ये बीच वाला ले लेता हूं, बीच वाला। ये जो है वो हमारा एज्यूम मीन ए। स्मॉल ए लिखने वाले हैं ना हम लोग। चलिए स्मॉल ए, ऑलराइट, यहां भी मुझे स्मॉल ए करना पड़ेगा। 2.5 माइनस 22.5 माइनस 20, 7.5 माइनस 22.5 माइनस 15, 12.5 माइनस 22.5 माइनस 10, 17.5 माइनस 22.5 माइनस 5, 22.5 माइनस 22.5। अरे जो ए होगा ना वो जीरो ही होगा। 27.5 माइनस 22.5 5, 32.5 माइनस 22.5 प्लस 10, 37.5 माइनस 22.5 42.5 माइनस 20, और ये आपकी समझ में आया ना? हैव यू फॉलोड? नाउ मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब टोटल। लेकिन उसके लिए हाँ यू आई सॉरी, तो मुझे अभी नई कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू भाई एफ आई इधर है और यू आई इधर है, उसको राउंड करो। कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, या ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। भाई एफ आई की कॉलम यहां है और यू आई की कॉलम यहां है, और नेक्स्ट कॉलम में मुझे ये दो मल्टीप्लाई करना। बोलो 22 जा 40 डिफरेंट साइन, 15 5 जा 75 विद माइनस साइन, माइनस 40, 5 2 जा 10 विद माइनस 0। अब मैं बता रहा था कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है ना, उसका सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू या क्लास मार्क को आप ए ले लीजिए, तो वहां 0 ही आएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही हो जाएगा इसकी वजह से। अदरवाइज यू कैन टेक एनी 0। 5 1 जा 10 4 जा 15 2 जा 25 जा 100, और 25 2 जा 50,
ये मुझे मिलेगा सिग्मा एफ आई। अब यस वी हैव टू बी केयरफुल, कुछ नेगेटिव्स है, उसका टोटल करेंगे 18, 155, 165 विद माइनस साइन, सही है। 5, 11, 15, 16 और पॉजिटिव्स का टोटल, ऑलराइट 5, फिर 7 और 12, 1, 2, 2, 5 विद प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस 60, इज इट? 5, 12 में से 6, या प्लस 60। So what is sigma fi ui? Now this is the formula. Assuming method की ये formula है. What is a? 22.5. Yes, so let me write 22.5 plus what is sigma fi ui? 60. So that is 60 upon number of observations. Sigma fi 30. ये तो आसान वाला है 2. So 22.2 plus 2 that gives me 24.5. 24.5. This is your mean by assuming method. लेकिन वो बड़े मल्टीप्लिकेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। ये 24.2 आया था ना, अब वो वहां कुछ गड़बड़ी हुई थी शायद पिछले वेले, अदरवाइज ये दोनों मेथड में आपका आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? Sir, 726 है। हाँ, 726 में गलती हो सकती है, वो भी गलती हो सकती है, इट इज पॉसिबल, यू अंडरस्टैंड? ओके, एनीवेज आपको बेसिक्स में समझा रहा हूं, उसके बाद तो हम मीन ढूंढेंगे बहुत सारे सम्स में, बट सी दिस इज हाउ वी वर्क द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुई वो थोड़ा समझना है। इज दैट क्लियर? सो एज्यूम मीन मेथड, वो नेम ही सजेस्ट करता है कि यहां हम कोई एक वैल्यू को मीन एज्यूम करते हैं, और वो वैल्यू कौन सी कॉलम से पिकअप करते हैं? क्लास मार्क। कौन सी वैल्यू? उसमें बहुत सारी जितनी क्लासेस होंगे उतनी वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यू? कोई भी, लेकिन जनरली सिलेक्ट करना होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला या तो बीच वाला। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां रिपीट हुआ ना, इसलिए मैंने नहीं लिया, यू अंडरस्टैंड? या कोई भी बीच वाला क्लास। व्हेन वी लर्न दिस, हम लोग को बीच वाला क्लास ही चूज करना है ना, और ऑड नंबर हो तो एग्जैक्टली बीच वाला मिलेगा, इवन नंबर ऑफ क्लासेस हो तो 2 मिलेंगे बीच में, सो 2 में से कोई भी एक लेना, ऐसा हम सीखे थे। दैट इज व्हाट वी लर्न। आई होप यू अंडरस्टूड द एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड कैसे बने? अभी यहां भी सर ये तो बड़े बड़े नंबर है, 20, 15, छोटे कर दो ना, तो तीसरी मेथड आ गई, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में FIUI ओके इनटू क्लास हाइट, बस इतना है। फॉर्मूला में थोड़ा सा एडिशन, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये कौन सी मेथड? Step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड। इससे भी बेहतर आसानी रहेगी ये सब कैलकुलेशन। भाई सर यहां भी तो UI है और यहां भी UI है, यस, ये UI में अपॉन H आएगा। UI की फॉर्मूला में XI माइनस A अपॉन H आएगा। ऑलराइट, तो ये बदल जाने वाला है, तो डेफिनेटली ये भी बदल जाएगा, FIUI, ओके, और नीचे सिग्मा FIUI मिलेगा। देखते हैं, व्हाट इज XI? 2.5, व्हाट इज A? 22.5, माइनस करोगे तो माइनस 20 मिलेगा, डिवाइड बाय क्लास हाइट 5 की है, क्लास हाइट किसकी है? तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या मिला? -4 मिला ना। चलो 7.5 माइनस 22.5 -15 और डिवाइड बाय 5 -3, फिर -2, फिर -1, इसके सामने 0, +1 +2 +3 +4 +5 करने की भी जरूरत नहीं है, यही आंसर आने वाला है। लेकिन देखो, बी केयरफुल, यू विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली ओनली इफ द क्लास लेंथ इज कांस्टेंट। 5, 10, 15, 20, 25 ये क्लास लेंथ कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो तभी। तो ये मेथड में आपको क्या करना है? चलिए, ये क्या है? ये क्या है? एज्यूमिंग सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, क्लास मार्क 22.5 को हमने एज्यूम लिया, उसके सामने UI क्या होगा? 0। अब यहां जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, नीचे नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है, ये गड़बड़ी करते हैं आप लोग। यहां ऊपर नेगेटिव रहेगा,
0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. अरे चिल्ड्रन एज्यूमिंग मेथड में 0 0 0 आता है और कुछ नहीं, समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन वो नहीं है। चलिए नाउ FIUI थोड़ा आसान हो गया भाई, पहले कॉलम में कॉलम के पहले वैल्यूज राउंड करना so that it is confirmed that you are multiplying FI and UI. 4 2s are 8 with minus, 5 3s are 15 with minus. भाई वो 80 आया था, 150 आया था। 4 2s are 8 with minus sign. ओके, ये माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। 3 zeros are 0, 1 2s are 2 with minus sign, 1 1s are 1, 2 4s are 8, 2 or 3 6, 5 into 4 20, or 2 into 5, 10. this is going to be sigma FI. हाँ, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आने वाली, बी केयरफुल चल रहा है। ये टोटल होगा 10 25 33 विद माइनस साइन, ये टोटल होगा 15 और 30 प्लस 45, और ये डिफरेंस होने वाला है 12 का प्लस 12 है ना, माइनस 12 नहीं प्लस 12। बस ये रही हमारी फॉर्मूला बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यू गॉट एवरीथिंग। एज्यूम मीन आपने क्या लिया? 22.5। सिग्मा FIUI क्या मिला? 12 अपॉन क्लास सिग्मा FI 30 मल्टीप्लाई बाय क्लास हाइट 5 राइट, 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 2 जा, सेम आंसर आया ना 22.5 प्लस 2, दैट इज व्हाट 24.5. therefore x bar is so many, सेम फॉर्मूला आया ना, आई मीन सेम आंसर आया ना। ऑलराइट, वो जैसे स्मृतिका कह रही है वो 726 के टोटल में गड़बड़ी हो सकती है। एनीवेज, बट वही भी आंसर, वो तो डिफरेंस तो आने वाला है, नो डाउट डिफरेंस तो आने वाला ही है। ऑलराइट, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थ्री मेथड्स। तीनों की फॉर्मूला अलग है, मैं तीनों की फॉर्मूला लिखता हूं एंड फ्रॉम टुमारो सेशन विल फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, mean by assuming method, and mean by Step deviation it's very method. important that you learn all three methods, because in the examination if it is specified कि find mean by assuming method और आप बाकी दो में से कोई मेथड से करके आएंगे, मार्क आंसर भले करेक्ट हो, you will get 0 marks. If it is not mentioned, if it is not specified, yes, the best method is this one. Is that clear? समझ में आई बात? Let me quickly erase this part. So children, did you understand all the three formula? Yes, sir. All right. Methods to find mean, that is x bar of group data. The first method, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑलराइट। x bar is equal to sigma FI XI upon sigma F. This is sum of observations, लेकिन हमें मिलेंगे approximate, यानी ये है number of observations. Sum of frequency, this is sum of frequency का sum, number of observations. Is that clear? अब जो second method है वो है assumed mean method, alright, assuming method, और वो फॉर्मूला है x bar is equal to a, which is assuming, और ये वैल्यू कहां से पिकअप करेंगे? सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, प्लस सिग्मा
Fi ui upon sigma Fi. Very important, where ui is simply xi minus a. You understand? All right? And a is assumed, and a is assume me. All right? Third is step deviation method. Right? Step deviation method. Formula यही है, लेकिन multiplied by n, और ui is going to be different. A plus sigma Fi ui upon sigma Fi multiplied by, where ui is xi minus a upon h. A is assuming, इसमें भी assuming तो है, and h is class height या length, whatever you call it, class height या class. So here's the screenshot. When you come tomorrow, all right, मुझे ये सारी फॉर्मूला मेमोराइज चाहिए. all right, कौन सी मेथड में कौन सी फॉर्मूला लगती है बराबर डिस्टिंग्विश करना. all right, so children, I hope you had a good session today. We found mean, median and mode. We found mean by 3 different methods. all right, and I hope you understood how we got those formula. okay, थोड़ा सा rough idea है. Okay children, there is slight correction. हमको ये correction बराबर ध्यान में लेना है. It will help us to differentiate assume mean method formula and step deviation method. All right. Instead of ui, it will be di. So di वाली formula assume mean method है, और ui वाली formula step deviation. आपकी बुक में ये दिया है. हम लोग जब पढ़ते थे वो ui था, ठीक है. अरे हम लोग जब पढ़ते थे वो एक ही मेथड थी, यही मेथड थी, वही करनी थी. बाद में दिया है. All right. Anyways, we have made a correction here in the formula. Assume mean method, sigma Fi. Di. What is Di? Xi minus a. And in step deviation method, sigma Fi. The ui is xi minus a upon H. Is that clear? So that's all that we have in this session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe.